Hi everyone. So today's topic is organic. In this video, we are going to solve some most probable question that has high probability to come into your exam. Okay, and I am very sure that you are going to see so many questions directly from today's class, and you can thank me later about this. और एग्ज़ाम के बाद ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे फ्रॉम दिस क्लास ओनली. Okay, so let's start. We will be doing some previous year questions along with some important topics और कुछ नए questions भी add होंगे, okay, that are most probable. All right. In the previous video, I have teach the topic of IUPAC naming. So in this video, I will start from we have to write the structure from the naming. Okay, first of all, if I talk about prop 1 you have to write the structure of this compound. Okay, the most common mistake students do, we have to write its structural formula, so they will write their condensed formula. Okay, सबसे पहली mistake यही होती है that you should know about the structural formula. In the structural formula you have to represent all the carbon carbon and carbon hydrogen bond and all other bond that are present there. Okay, so how we will write the structure? First, see prop. Word root is the prop. Prop means there will be 3 carbon in the main chain. So first write 3 carbon. Okay, 3 carbon. Then you can numbering from any side. You can start a numbering from left or right, whatever. So I am starting a numbering from right side, 1, 2, 3. Now you can see that it is prop 1 in. In means there will be double bond. So at one position there will be double bond. Okay. This is given. This was only given in your question. Now rest of the valencies you will complete by the hydrogen. Carbon has 4 bonds. Okay, 4 bond बनाता है carbon. बाकी के वैलेंसी किससे कंप्लीट कर दो? हाइड्रोजन से. This will be your structure. Okay, all the carbon has the 4 bonds present in their structure. So this will be the structural formula of prop 1-ene. Okay, now if we talk about propene, again first just write, check the word root. It is prop. Prop means 3 carbon will be there in the main chain. So we will write a 3 carbon. All right, start numbering from any side. Let me start it from the right side. Now see, there is 2 methyl. At the second position, methyl group is present. So you will write CHH. CH3 is a methyl group. Always remember you are writing the structural formula. If in the question structural formula is given to you, then you have to represent all the bonds. Now, what else is left? Propene. So propene, no position of double bond is given. It means it must be present at the first position. So we will write it here, double bond. Right, at first position propene is present. All the information given in the question we have just written it. Now complete the valency of carbon by the hydrogen. Remaining जो भी valency आपकी बची है उसको हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दो. इसके 4 बॉन्ड हो ही चुके हैं. So this will be the structure of this compound. Okay, this will be your 2-methyl propene. Next structure we have butanol. Butanol, An means it is aldehyde, right? We have to write the structure of butanol. But is the word root. There will be 4 carbon atoms. So 1, 2, 3, 4. 4 carbon represent कर दिए. Now again numbering left से कर लो चलो. 2, 3, 4. Okay. Now butanol. Al is a functional group. Al is for the aldehyde. Okay. So at the first position you have to represent aldehyde. Remember I have told you aldehyde and carboxylic acid carbon will be presented in the मेन चेन. ठीक है, जो भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड का कार्बन होगा उसको आप मेन चेन में ही काउंट करते हो. तो अगर 4 कार्बन दिए तो 4 में से एक किसका होगा?
एल्डिहाइडिक कार्बन। तो एक फर्स्ट पोजीशन पर लिख दो आपका C+O H। Structural formula. You will not write CHO. It will be wrong. You have to represent all the bond in the structural formula. Okay. Now just complete the rest of the valencies by hydrogen. This will be the structural formula of butanol. Okay. This was your previous year question, and this was also the previous year questions. Okay. Next question. Next is 3-methyl pentane. Now word root is pent means 5 carbon. Just write the 5 carbon chain. Then start the numbering 1, 2, 3, 4, 5. At the third position, methyl group is present at third carbon. Methyl group को present कर देंगे. ये रहा methyl group. Structural formula CH3 you will not write. Then 3-methyl pentane. It means it is alkane. All the information given in the question we have just represented it here. Now complete rest of the valency by hydrogen. Just you can just stretch the bond longer so that this hydrogen will not overlap with the hydrogen of the methyl group. This will be your structure of 3-methyl pentane. Next is propyne. Propyne, see YNE, it means alkyne. First write the 3 carbon, prop word root, then 1 ion at the 1 position. Just represent the triple bond. Represent the triple bond at the first position. Okay, हमेशा जो भी आपका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है, जो लोअर वाला नंबर होता है वही उसकी पोजीशन होती है. कोई पोजीशन स्पेसिफाई नहीं करी, कोई नंबर नहीं, इट मींस इट विल बी एट 1 पोजीशन. ओके, prop 1 ion. बस अब जितनी भी वैलेंसी है उसको कंप्लीट कर दो बाय द हाइड्रोजन. This will be a prop 1 ion. Okay, next we have methanol. Methanol, Al means aldehyde. Okay, it contains meth means there will be only 1 carbon. Okay, methanol, you will just write the aldehydic group structure C+OH. एक ही कार्बन है, meth means 1. So this is the structure of aldehydic group. Complete rest of the valency by hydrogen. There will be H. HCHO. Okay, you will not write this. It will be wrong. Structural formula is asked, so you have to represent all the bond. Okay, so this will be a methanol. Next question, the very common mistake that students do. If I talk about the formula of the pentanoic acid. Pentanoic acid, there are 5 carbon, just represent 5 carbon, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, pentanoic acid, so you will write at the first position. हमेशा हम नेमिंग के टाइम पर फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट पोजीशन देते थे जहां से वो नियर पड़ता था, है ना. सो इट फर्स्ट कार्बन विल बी द पेंटेनोइक एसिड. अब ये C+OH. अब व्हाट क्या जनरल मिस्टेक होती है, C+OH is a functional group, so what you will do, you will just write the OH like this. और आपको पूछा है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में तो सारे बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं, and you have not represented the OH bond, so it will be wrong. You have to represent this bond also.
Okay, this is the very common mistake that are done by the students while writing the structural formula for carboxylic acid. Now, all the information done, complete the rest of the valency by the hydrogen. This will be the structural formula of the pentanoic acid. Okay. Next question, you have to write structural formula of a alcohol. Okay, structural formula of a alcohol with molecular formula C4H10O. C4H10O is the molecular formula given of an alcohol. कोई alcohol है, उसका molecular formula ये है, and you have to write its structural formula. Okay. First, you know that alcohol functional group is represented by the OH, right? तो हम उसको इसी टाइप से लिख लेंगे कि आपको OH clearly दिखे. So from in alcohol, one hydrogen will be with the oxygen. ठीक है? तो 10 में से कितने रह जाएंगे आपके? एक हाइड्रोजन यहाँ चला गया. It will be 9. It will be C4H9OH. You can represent it like this. It will be easier for you. Or what you can do directly, आप क्या करोगे? C4 given है. अगर आपको ऐसे नहीं बनाना आ रहा तो just C4 is given to you. Write 4 carbon. 4 कार्बन लिख दिए. आपको पता है that it is अल्कोहल. कोई पोजीशन स्पेसिफाई नहीं करी है तो फर्स्ट पोजीशन पर ही होगा OH. तो यहाँ पर आप अटैच कर दो OH. Again you will represent the bond. You will not write it like this. It will be wrong. फर्स्ट पोजीशन पर OH लिख दो. ठीक है, बाकी की वैलेंसी पूरी कर दो हाइड्रोजन से. This will be your alcohol with the molecular formula C4H10O. You can cross check it by counting the number of hydrogen. कार्बन तो 4 ही है, ठीक है, तो यहाँ से कर लो आपके हाइड्रोजन 4 और 4 8 9 10. There are 10 hydrogen. You can cross check it. Clear है? So this was writing structural formula from the IUPAC name of the compound. Now I am moving towards the next topic, which is homologous series. One or two question I think was asked from the homologous series. I will directly write the question, okay, and then we will understand what is homologous series with that series. ये वाला question आपका 2025 recent year का ही question है. So which of the following option has all the compound which are member of the same homologous series? Now what is homologous series? Homologous series is a group of compound. ठीक है, कंपाउंड का ग्रुप है जिनका सेम जनरल फॉर्मूला है. ओके, सेम जनरल फॉर्मूला, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सिमिलर स्ट्रक्चर. ओके, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन सेम एंड सिमिलर? Similar structure and similar chemical properties mean same type of reaction it will show. For example, if we talk about alkane, alkane has the general formula of CnH2n plus 2, and the whole series of alkane will have the same general formula. Structure, all the alkane will have carbon-carbon single bond. Okay, and the chemical property, for example, all the alkane shows the substitution reaction. Okay, so now we have to look. What does this formula means? N is the number of carbon atom. Okay, so for alkane कैसे देखेंगे हम इसको? Just see, जितने भी आपके कार्बन है, okay, जितने भी आपके कार्बन है, तो आपके हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट हो गए? कार्बन का नंबर डबल करके 2 ऐड कर दो. ठीक है, जितने हाइड्रोजन का नंबर कितना होगा? जितने भी आपके कार्बन है उनको डबल करके 2 ऐड कर दो. यही इस फॉर्मूला का मतलब है. एंड होमोलॉगस सीरीज में क्या होता है? ईच सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय द CH2 ग्रुप. CH2 ग्रुप, ठीक है, हर एक एडजेसेंट और सक्सेसिव मेंबर में किसका डिफरेंस होगा? CH2 का. फॉर एग्जांपल फर्स्ट मेंबर क्या होता है? एल्केन का मीथेन होता है. तो सेकंड क्या होगा? CH2 का डिफरेंस होगा. तो ये क्या हो जाएगा? C2H6. ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट हो जाएगा और CH2 ऐड कर दो, C3H8 डैश डैश डैश. यू कैन चेक इट डायरेक्टली.
या तो CH2 ऐड करके देख लो और यू कैन इजिली आइडेंटिफाई द एल्केन. नाउ सी द फर्स्ट ऑप्शन CH4 है. नेक्स्ट इज C2H6 C3H8. ठीक है, आपको बस CH2 ग्रुप ऐड करके देखना है. तो यहाँ पर CH2 का डिफरेंस है दोनों में, और यहाँ पर भी क्या है आपका CH2 का डिफरेंस है. तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन. ओके, एक बार चेक करने से पहले देख लेना दैट इट शुड बिलोंग टू द सेम सीरीज. ठीक है, सेम सीरीज का होना चाहिए और एडजेसेंट होना चाहिए. कार्बन नंबर 1 के बाद कार्बन 2 भी आप देखोगे, कार्बन नंबर 3 में CH2 का डिफरेंस नहीं होगा, सक्सेसिव कार्बन में होगा. इफ यू टॉक अबाउट एल्कीन, एल्कीन क्या होता है? CnH2n. इट मीन्स हाइड्रोजन कितना है, जितने कार्बन प्रेजेंट है उसका डबल कर दो. जैसे आपका C4 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, इसका डबल कर दो, C4H8. नेक्स्ट मेंबर CH2 से डिफर करेगा तो ऐड कर दो, एक कार्बन ऐड कर दो, दो हाइड्रोजन, C5H10. देखो कार्बन 5 है, इसका डबल करोगे तो क्या हो जाएगा 10. दिस इज हाउ यू कैन राइट द होमोलोगस सीरीज. यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट. जस्ट सी, आपको क्वेश्चन में पूछा है किसका कंपाउंड ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज. फर्स्ट यू विल आइडेंटिफाई जो भी आपका कंपाउंड है, आप देख लोगे एल्केन है, एल्कीन, एल्काइन है. जस्ट चेक द डिफरेंस ऑफ CH2. ये इस क्वेश्चन में तो आपको ये चेक करने की भी जरूरत नहीं है कौन एल्केन एल्काइन क्या है. जस्ट सी द डिफरेंस ऑफ CH2. All right. So next question. Now see this question. Which formula represents saturated hydrocarbon? Saturated hydrocarbon क्या होते हैं? Alkanes. Unsaturated alkene and alkyne are the unsaturated hydrocarbon. तो अभी मैंने आपको बताया, I have just told you the general formula of alkene. CnH2n plus 2. हाइड्रोजन का नंबर कितना है, कार्बन को डबल करके 2 ऐड कर दो. So C4H8 ये क्या है? This is alkene, right? हाइड्रोजन का नंबर कितना है, डबल. एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n. एल्काइन क्या होता है, CnH2n माइनस 2. डबल में से 2 माइनस कर दिया, ठीक है. और CnH2n प्लस 2 एल्केन. दिस इज एल्केन, दिस इज एल्कीन, दिस इज एल्काइन. एल्केन में क्या करेंगे, हाइड्रोजन का नंबर कितना होगा, कार्बन जितने प्रेजेंट है उसको डबल करके 2 ऐड कर दो. एल्कीन जितने कार्बन है उसको डबल कर दो. और एल्काइन हाइड्रोजन कितना होगा, जितने भी कार्बन प्रेजेंट है डबल करके 2 माइनस कर दो. इजी है, ठीक है. सो दिस इज एल्कीन. देख लेना कैलकुलेट करके. ये क्या है आपका C5H12. हाइड्रोजन कितना है, 5 इंटू 2 10 प्लस 2. सो दिस विल बी योर एल्केन. बाकी भी देख लेते हैं. C4H6 ये क्या है आपका, एल्काइन. हाइड्रोजन कितना है, कार्बन को डबल करो तो 8, 8 minus 2 will be 6. Next is, this is also alkene. So your correct option will be B. ये दोनों क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगोज. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चाहे आपका एल्कीन हो या एल्काइन, अभी हम रिएक्शन में देखेंगे, दे शोज द एडिशन रिएक्शन बिकॉज दे हैव अनसैचुरेशन. हाइड्रोजन का अनसैचुरेशन है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट दिस ईथीन, दिस इज द ईथीन, देयर इज डबल बॉन्ड. इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पर हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, सम XY ग्रुप. दिस विल बी द एडिशन रिएक्शन. सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल शो एडिशन रिएक्शन. सैचुरेटेड एल्केन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके, नाउ one by one we will see some very important reactions of the alkane, alkene, alkyne, alcohol and carboxylic acid. प्रिपरेशन देखेंगे जो इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन है एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, प्लीज गेट वन थिंग वेरी क्लियर. आई विल नॉट explain each and every topic and each and every reaction. In this video I will be telling you those reactions which are very very important, which has very high chances of coming in your board examination. Okay, so we will solve only those reaction and the question based on those reactions. Okay, so first I am starting with, now first we are talking about alkenes. alkane general formula CnH2n plus 2. Okay, lab preparation. lab preparation हम किससे करते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये रिएक्शन आपकी बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुकी है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, CH3COONA. इसको रिएक्ट कराएंगे सोडा लाइम के साथ, NaOH CaO. मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO इज कॉल्ड सोडा लाइम. हीट कर देंगे. सो व्हाट विल फॉर्म,
it will form Na2CO3 and your methane will be formed. Okay, Na2CO3, sodium carbonate and methane gas will be released. ये याद रखना, it is 2 Na2CO3. Okay, sodium has one valency. जब क्रिस क्रॉस करके फॉर्मूला लिखोगे तो Na2CO3 आएगा. Okay, now what is the name? This is sodium hydroxide. This is sodium carbonate. This is your methane gas. Gas is released, so upward arrow. Now this its name, common name अगर बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है? सोडियम एसिटेट. कॉमन नेम. अगर आपको रिएक्शन क्वेश्चन में पूछ लिया रिएक्शन ऑफ सोडियम एसिटेट विद सोडा लाइम, सो यू शुड बी एबल टू राइट दिस. कैसे याद रखोगे? यू नो दैट CH3COO नेगेटिव, दिस इज द एसिटेट आयन. ओके, एसिटेट आयन है तो सोडियम के साथ सोडियम केटायन है, तो टुगेदर इट विल बिकम सोडियम एसिटेट. ओके, नाउ व्हाट विल बी द IUPAC नेम? सी देयर आर 2 कार्बन. 2 कार्बन के लिए वर्ड यूज करते हैं इथ, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सोडियम. अगेन यहाँ पर कैटायन तो सोडियम है, सोडियम का तो IUPAC नेम जो भी आप कुछ कह लो सोडियम ही होता है. सो इट विल बी 2 कार्बन. तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? इथेनोएट. लास्ट में OAT लग जाएगा. ठीक है, इट विल बी इथेनोएट. ओके, सोडियम एसिटेट कॉमन नेम सोडियम इथेनोएट. लास्ट में क्या लग जाएगा? OATE. दिस विल बी योर IUPAC नेम. ओके, मीथेन फॉर्म हो गई. ये रिएक्शन बहुत बार आ चुकी है. अभी क्या चांसेस है कि आपका रिएक्शन दे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथेन? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? C2H5COONA. ठीक है, देखो इस रिएक्शन में जो आपका रिएक्टेंट है सोडियम एसिटेट, इसमें कितने कार्बन है? 2. लेकिन जो आपका प्रोडक्ट बना है मीथेन, मीथेन एक ही कार्बन का है. एक कार्बन किस में फॉर्म हो गया? Na2CO3. सिमिलरली we will react it with NaOH, CaO, soda lime. It will again form Na2CO3. ठीक है, there was 3 कार्बन. COO वाला कार्बन कहाँ चला गया आपका? Na2CO3. और आपका क्या फॉर्म हो जाएगा? C2H6 इथेन. क्लियर है? नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? कॉमन नेम क्या होता है? पहले IUPAC नेम लिख लेते हैं. IUPAC नेम, देयर आर 3 कार्बन. ठीक है, 2 यहाँ है और एक यहाँ. सो 3 कार्बन के लिए प्रॉप होता है, तो प्रॉप और लास्ट में आपको क्या लगा देना है? 8, OAT, प्रोपेनोएट, सोडियम प्रोपेनोएट. दिस विल बी द IUPAC नेम. ठीक है, एल्केन का E हटाकर आपको लास्ट में OATE ऐड कर देना. दिस विल बी द IUPAC नेम. कॉमन नेम क्या होता है? कॉमन नेम होगा सोडियम प्रोप्यूनेट. प्रोप्यूनेट ये हो जाएगा कॉमन नेम. ठीक है, याद रखना अगर आपको रिएक्शन ऐसे आ जाए, या तो कैसे क्वेश्चन आएगा? reactant will be given to you, this reaction condition will be given to you, you have to complete and balance the reaction. ऐसे क्वेश्चन आता है. या फिर आपको पूछ सकता है राइट द रिएक्शन ऑफ सोडियम प्रोपेनोएट विथ सोडा लाइम. और ये भी क्वेश्चन आ सकता है राइट द लैब प्रिपरेशन ऑफ इथेन, write the lab preparation of ethane and methane. Okay, so you can write it, you can write this reaction. Next reaction, this was the preparation. Next reaction क्या होती है? वो आपकी chemical reaction. Alkane कैसी reaction show करते हैं? Substitution reactions. Okay, so substitution reaction will be shown by the alkanes. For example, we will react the alkane with Cl2 in presence of diffused sunlight. Just have some patience, guys. So this is the chemical property. What type of reaction alkane show? Substitution. So ये not halogenation, it will be a substitution reaction. This is methane, right? We will react it with Cl2 in diffused sunlight. There will be diffused sunlight. What will happen? Substitution means सामने वाला ग्रुप किसी और को सब्स्टिट्यूट कर देगा,
तो क्या होगा, दिस क्लोरीन विल सब्स्टिट्यूट दिस हाइड्रोजन, ये यहाँ आ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से बाहर, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3, एक हाइड्रोजन हट गया, उसकी जगह क्या आ गया आपका Cl प्लस HCl, जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ था इट विल कंबाइन विथ क्लोरीन। अब क्या होता है, ये रिएक्शन यहाँ रुकती नहीं है, ओके, हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, इट प्रोसीड बाय द रेडिकल मैकेनिज्म। रेडिकल रिएक्शन जब भी स्टार्ट हो जाती है वो आसानी से रुकती नहीं है, इट इज अ चेन रिएक्शन। तो क्या होगा बेटा इसके बाद, दिस CH3Cl विल रिएक्ट अगेन विद Cl2, दोबारा से Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, एक और हाइड्रोजन रिप्लेस होगा एंड इट विल फॉर्म CH2Cl2 plus HCl. Again this CH2Cl2 will react with Cl2, फिर से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, इट विल फॉर्म CHCl3 प्लस HCl, ये क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, देन CHCl3 प्लस Cl2, फिर से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, फाइनली इट विल फॉर्म CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस HCl। ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था ऑफ आयोपेक नेमिंग, दिस इज कार्बन टेट्राक्लोराइड और टेट्राक्लोरोमीथेन। आयोपेक नेम क्या होगा, टेट्राक्लोरोमीथेन, कॉमन नेम कार्बन टेट्राक्लोराइड। दिस इज द रिएक्शन। अब ये जो प्रोडक्ट होते हैं, हमें तो सिर्फ CH3Cl चाहिए था, राइट, तो हाउ वी विल एक्सट्रैक्ट इट, कैसे करेंगे, मिक्सचर से इसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट बने हैं, ये वाला आपका CH3Cl और दो बार सब्स्टिट्यूट हो गया तो डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई, टेट्रा, ये सारे हम सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बिकॉज दे हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ओके, सो दिस वाज अबाउट द एल्केन, दीज टू रिएक्शन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप ये, अगर आपको ये रिएक्शन, वैसे तो इजी रिएक्शन है, और अगर आपसे नहीं हो रही, यू कैन जस्ट रिमेंबर दैट एल्केन शोज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी फिर वो देख लेंगे। लैब प्रिपरेशन किससे होती है, बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन, डी मींस रिमूवल, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन से क्या समझ आ रहा है, वाटर, राइट, सो रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द अल्कोहल। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। सबसे फर्स्ट मेंबर क्या होगा, the first member of alkene will contain 2 carbon, because alkene में कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन प्रेजेंट होता है, तो दो डबल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए एक और कार्बन का होना पड़ेगा, सिंगल कार्बन की कोई एल्कीन नहीं होती, मीथेन जैसा कुछ नहीं होता। ओके, सो एल्कीन फर्स्ट रिएक्शन, लैब प्रिपरेशन बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सो इफ आई टॉक अबाउट C2H5OH, कैन यू राइट द आयोपेक नेम, इट इज इथेनॉल, OL, OH है तो इथेनॉल, ठीक है, इसको हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे, सो वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिलीज्ड एंड इट विल फॉर्म C2H4 प्लस H2O, राइट, CH3OH, OH I am writing it here, यहाँ हाइड्रोजन लिख देते हैं, क्या होगा, डिहाइड्रेशन, H2O विल बी रिलीज्ड, यहाँ से इस टाइप से आपका एक कार्बन से H, दूसरे कार्बन से OH निकल जाएगा, ठीक है, दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड टूट गया, तो दोनों कार्बन आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, दिस विल बी योर इथीन एंड H2O, वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिलीज्ड। Dehydration of alcohol, this was a lab preparation. Okay, next क्या होता है, what is the next reaction, dehydrohalogenation, D means removal, hydro hydrogen, halogenation halogen, ठीक है, halogenation means आपका halogen आ जाएगा, so removal of HX, dehydro halogenation, removal of HX, removal of HX,
ये क्या है, माइनस कर दिया हमने एच एक्स को माइनस कर देंगे, सो रिएक्शन क्या हो जाएगी, सपोज वी हैव अ CH3 CH2 Br, ठीक है, आपको क्लियर है, डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रोजन, हेलोजन, ठीक है, आपका एक तो हाइड्रोजन निकलेगा, एक्स क्या होता है, हेलोजन। सो इसको किससे रिएक्ट कराएंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई, बिकॉज वी विल रिएक्टेड विद द एल्कोहलिक KOH, KOH विल बी एल्कोहलिक, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में दे दिया इथेनॉलिक KOH, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, इथेनॉल भी क्या है आपका, एल्कोहल, राइट, तो एल्कोहलिक KOH है, तो इथेनॉलिक KOH आपको गिवन है, तो जस्ट रिमेंबर इट विल बी द सेम रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका एल्कोहलिक KOH, क्या होगा, यहाँ से H और Br निकल जाएगा, एल्कीन विल बी फॉर्म्ड C2H4 प्लस KBr प्लस H2O, just see Br is given here, हाइड्रोजन, कैसे याद रखोगे, एल्कोहलिक KOH है, ठीक है, एक कार्बन से आपका हाइड्रोजन और ब्रोमीन, बोथ ऑफ दीज विल बी रिलीज्ड, हाइड्रोजन और ब्रोमीन दोनों निकल रहे हैं, लेकिन साथ में नहीं, HBr नहीं फॉर्म होगा, ठीक है, ये जो ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन विल कंबाइन विद दिस कैटायन K, ठीक है, ये ब्रोमीन जो है वो K प्लस के साथ कंबाइन होकर फॉर्म कर लेगा KBr, और जो वाटर है ये H और OH कंबाइन करके क्या फॉर्म कर लेंगे, वाटर, क्लियर है, ऐसे याद कर लो, जैसे ये कैटायन है OH माइनस एनायन है, जस्ट याद करने के लिए, ये Br आपको पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव, तो ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे, KBr फॉर्म होगा, एंड H और OH कंबाइन करके क्या फॉर्म कर लेंगे, वाटर, ये आपको याद रखना है दोनों चीजें, ठीक है गाइस। अगर कोई रिएक्शन विदाउट बैलेंसिंग रह गई है तो देख लेना, ठीक है, आई डोंट थिंक अभी मैंने कोई रिएक्शन बैलेंसिंग के बिना छोड़ी है, but still, okay, you have to write the balanced chemical reaction always. So this is a reaction. अब देखो बेटा, similar reaction अगर आपने KOH एल्कोहलिक की जगह एक्वस ले लिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ठीक है, रिएक्शन विल चेंज कंप्लीटली, एल्कोहलिक KOH, देखो इसमें वाटर निकला, इट इज अ एलिमिनेशन रिएक्शन, आपके जो रिएक्टेंट है उससे कुछ निकल रहा है बाहर, एलिमिनेट हो रहा है, सो जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन। बट अगर आपने ले लिया एक्वस KOH, एक्वस KOH ले लिया तो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, CH3CH2Br, या फिर आप कैसे लिख सकते हो इसको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की फॉर्म में, जितने कार्बन है वो लिख दो C2 और जितने हाइड्रोजन है Br, ठीक है, इसको रिएक्ट कराओ, KOH एक्वस, देखो दिमाग पे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं, ये आ रहा है समझ तो ठीक है, अदरवाइज सिंपली ऐसे ही लिख लो। बेसिकली ये बना कैसे है, C2H5, आपने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया एल्केन से और क्या ऐड कर दिया, ब्रोमीन, जस्ट रिमेंबर इट, ओके, क्योंकि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, दोनों रिएक्शन आपके इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वही मैंने कराई है, जस्ट लर्न देम, ओके। In this reaction what will happen, this Br will be substituted by the OH, okay, यहाँ पर K plus है, OH minus है, so what will happen, this OH will replace this Br, खुद जाके ऐड हो जाएगा, Br को कर देगा बाहर, so what will happen, it will form C2H5OH plus KBr, this is a substitution reaction, ठीक है, देखो सिर्फ KOH एल्कोहलिक की जगह एक्वस कर दिया, ओके, सो रिएक्शन विल कंप्लीटली चेंज, इट विल फॉर्म इथेनॉल, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये OH क्या करेगा, Br को रिप्लेस करके खुद वहां पर चला जाएगा और यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा KBr, दिस इज इथेनॉल, इथेनॉल, ये क्या है आपका, ब्रोमो इथेन, क्लियर है, Br सब्स्टिट्यूएंट होता है तो ब्रोमो इथेन,
You should know how to write the name. IUPAC वाली क्लास अच्छे से देख लेना. This is bromoethane. Bromoethane. Now these were the preparation. अब हम बात करेंगे chemical properties. Chemical properties में first क्या है आपका? एल्कीन है, डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, तो इट विल शो एडिशन रिएक्शन. ठीक है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन. ठीक है, तो क्या होता है इसमें? हाइड्रोजनेशन, C2H4, दिस इज योर एल्कीन. इसमें हाइड्रोजन को ऐड करेंगे. वी कैन टेक सम कैटलिस्ट. कौन कौन से कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं? NiPd/Pt. निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, तीनों क्या है आपके? ग्रुप नंबर 10 के एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक में प्रेजेंट है, कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं. तीनों कैटलिस्ट है. कैसे लेते हैं? फाइनली डिवाइडेड. फाइनली डिवाइडेड क्यों लेते हैं? इट विल इंक्रीज द सरफेस एरिया. क्योंकि देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराना है, हाइड्रोजन को कहीं रोकना पड़ेगा, राइट? तो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कराते हैं हम मेटल के ऊपर. तो जितना ज्यादा पाउडर की फॉर्म में फाइनली डिवाइडेड लोगे, उतना ही ज्यादा आपकी गैस एब्जॉर्ब हो जाएगी. अदरवाइज गैस विल एस्केप, राइट? गैस को हमें रोकना पड़ेगा, तभी तो रिएक्शन होगी. ठीक है, सो C2H4 H2 रिएक्शन हम कराएंगे. जैसे हम निकल लगा जो हम ले रहे 200 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जाम्पल, कुछ टेम्परेचर लेना पड़ता है निकल के साथ. तो क्या होगा? हाइड्रोजन विल बी एडेड. बस हाइड्रोजन ऐड कर दो. C डबल बॉन्ड C, ये हाइड्रोजन, दिस इज योर इथीन. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और दोनों तरफ क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन विल बी एडेड. इट विल फॉर्म C2H6. एडिशन रिएक्शन है. ठीक है, सो इट विल बी द एडिशन प्रोडक्ट. यू कैन ऐड हाइड्रोजन. अगर हमें C3H6 दे दिया जाए और हाइड्रोजन ऐड करो, यू कैन इजीली फॉर्म. सपोज अब की बार हमने प्लैटिनम कैटलिस्ट ले लिया, इट विल फॉर्म C3H8. हाइड्रोजन ऐड कर दो. नेक्स्ट इज हेलोजिनेशन. अब देखो ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हेलोजिनेशन, हेलोजनेशन, एडिशन ऑफ हेलोजन. ठीक है, एडिशन ऑफ हेलोजन. फॉर एग्जाम्पल C2H6, इसमें हम ऐड करा रहे हैं Cl2. सॉल्वेंट कैसा लेते हैं? नॉन पोलर, CCl4. जनरली जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं, इस पे हम यूज करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड. ठीक है, ये सॉल्वेंट है. अब ये मत सोचना कि CCl4 भी कहीं प्रेजेंट है तो इसको भी कहीं ऐड करके प्रोडक्ट लिख दो, नहीं. दिस इज अ सॉल्वेंट. क्लियर है? नॉन पोलर सॉल्वेंट है. नॉन पोलर है इसीलिए ये आकर इसके साथ रिएक्ट नहीं करने वाला है एल्कीन के साथ. सो क्या होगा? C2H6 एडिशन रिएक्शन, ऐड कर दो हेलोजन. क्या फॉर्म हो जाएगा? देखो, C डबल बॉन्ड C H. This is ethene. Just break the double bond and add chlorine to both side. Okay. तो इसको कैसे लिख सकते हो? You can write C2H. ये बेटा C2H4 है. This was ethene. C2H4 Cl2. इसको करेक्ट कर लिया. This C2H4. Okay. So C2H4 Cl2. और कैसे लिख सकते हो? CH2 Cl, CH2 Cl. दोनों यहाँ पर क्या हो गया आपका? ClCl अटैच हो चुका है. ठीक है, दिस विल बी द एडिशन प्रोडक्ट. नाउ रिएक्शन विद ब्रोमीन. ब्रोमीन के साथ रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत बार आएगा एग्जाम में. C2H4 प्लस Br2. अगेन सॉल्वेंट विल बी CCl4. अब देखो ब्रोमीन कैसा होगा? इसका सोल्यूशन रेडिश ब्राउन कलर. ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर होगा ब्रोमीन का जब ब्रोमीन विल बी प्रेजेंट इन द Br2 फॉर्म. बट रिएक्शन के बाद क्या होगा? ब्रोमीन विल बी एडेड. दोनों कार्बन पर ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, राइट? तो इसमें क्या आता है? व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन व्हेन यू ऐड ब्रोमीन टू द इथीन इन द CCl4 सॉल्वेंट? क्या ऑब्जर्वेशन होगा? The reddish brown color of bromine will decolorize or disappear.
Okay, it will disappear or fades. Reddish brown color will disappear or fades. Why? Because this bromine is consumed, right? ये यहाँ से Br2 से consume होकर क्या form कर रहा है, इसमें add हो रहा है. It will form C2H4. add हो रहा है तो जितने दो bromine add हुए हैं Br2 लिख दो. और क्या लिख सकते हो, और कैसे इसको represent कर सकते हो, CH2Br CH2Br. ठीक है, दोनों CH2 थे, उस पर क्या हो गया, Br add हो चुका. ठीक है, जस्ट रिमेंबर, कुछ नहीं करना है, एडिशन रिएक्शन है. ये आपका डबल बॉन्ड टूटा कार्बन कार्बन का, और यहाँ पर आपका अटैच हो गया 2 Br. दिस विल बी द एडिशन प्रोडक्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. ऑब्जर्वेशन क्या होता है, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन? द रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन विल डिसअपियर और फेड्स अवे. And what will be the name? इसको कैसे लिखेंगे, CH2Cl CH2Cl. ठीक है, तो इसका आपको नेम लिखना है, तो कैसे लिखोगे, ये हो गया आपका कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2. फर्स्ट यू विल राइट द सब्स्टिट्यूएंट, प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है, तो लिखोगे व्हाट विल बी द नेम. क्लोरीन इज प्रेजेंट ऑन फर्स्ट और सेकेंड पोजिशन, सो 1, 2. अब एक सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है, 2 बार प्रेजेंट है, तो फिर डाई विल बी यूज्ड. 1, 2 डाई क्लोरो. वर्ड रूट इथ, 2 कार्बन है, राइट. और कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, इट मींस द सफिक्स विल बी ane, ईथेन. 1, 2 डाइक्लोरो इथेन. ये देखो नेक्स्ट बेटा, रिएक्शन यही है, मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है, इसको आप देख सकते हो, CH2Br CH2Br. What will be the name? This carbon will be 1, 2. Substituent लिखो पहले, पोजीशन है 1 और 2. 1, 2 डाइब्रोमो, 2 ब्रोमीन है, डाइब्रोमो. वर्ड रूट इथ, एंड देन एल्केन है, कोई सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो इथेन. 1, 2 डाइब्रोमो इथेन. Okay, this will be your chemical reaction of ethene. So class, ethine, alcohol and carboxylic acid, the reaction of these compound we will do in the next class, and the previous year questions we will also do. Okay, do not skip the next video, because we will be doing the preparation of ethine, जो कि बहुत बहुत important है. और आपका esterification reaction, alcohol और carboxylic acid दोनों में ही आपकी एक reaction cover हो जाती है. Esterification is very very important. So we will do this in the next video. Okay, and then please tell me in comment if you like this video or not, and you can also give your suggestions. Okay, then till then, like, share and subscribe. Thank you.